हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करें टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 नवंबर को 2025 में, उसका शिफ्ट 1 हम पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे शिफ्ट 2 का इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। इन पेपर में सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन आया है, तो कॉम्प्रीहेंशन से पहले हमारे को क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। उसके क्या है? आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is supported by the passage. Question number 3. Select the appropriate central theme of the passage. Question number 4. Which of the following best describe the tone of the passage? And question number 5. Antonym of the word unifying. देखो जो फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था ना, उसका वर्ड यूनिटी था, इसका है यूनिफाइड, तो दोनों सेम ही वर्ड है। यूनिफाइंग का क्या मतलब होता है? ब्रिंगिंग टुगेदर, ब्रिंगिंग टुगेदर और क्रिएटिंग यूनिटी, है ना। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? फॉलिंग, डिवाइडिंग, कंसोलिडेटिंग या ज्वाइनिंग। देखो टुगेदर आ रहा है तो डिवाइड मतलब सेपरेशन, है ना, सेपरेट। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। एंटोनिम सिनोनिम के जो क्वेश्चंस आते हैं ना पैसेज में, उस उनके लिए हमारे को ज़्यादातर पैसेज की नीड ही नहीं होती है। चलो अब हम अपना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। क्या है? द मल्टीप्लिसिटी ऑफ आर लैंग्वेजेस and communities is widely advertised, but little emphasis is laid on central facts which make India what she is. Throughout the last 2 millennia, there were linguistic unity. Some sort of lingua franca was used by a very large part of the country, and Sanskrit. For 1,000 years, the language of royal courts and all the times the language of culture was predominant, influencing life, language, and literature in most provinces. For last 3,000 years, social and family life had been molded and influenced by the Drama Shastra text, containing a comprehensive code of personal law, which, though adopted from time to time to suit every age and province, provided a continuous unifying social force. Aryan, or rather the Hindu culture, for there were considerable Dravidian influence, drew its inspiration in every successive generation from Sanskrit work on religious philosophy, ritual, law, and science, and particularly for two epics, the Mahabharata and the Ramayana. And the Bhagavata underwent recension from time to time and became the one irresistible creative force which has shaped the collective spirit of the people. Age after age, the best of Indians, from the mythical Vashishta to the modern Gandhiji, found self fulfillment in living up to an ideal of conduct in accordance with the code of life, which may be traced back as far as the Upanishads. तो देखो मोस्ट सुटेबल टाइटल हम एक बार पढ़ लेते हैं। द धर्मशास्त्र अ यूनिफाइंग कोड, द एंड्योरिंग लिगेसी ऑफ संस्कृत, द यूनिफाइंग फोर्सेस शेपिंग इंडियन आइडेंटिटी, द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ एंशियंट इंडिया। इसमें सबसे ज़्यादा सुटेबल टाइटल क्या है? द यूनिफाइंग सोर्सेज शेपिंग इंडियन आइडेंटिटी, यही बताया ना इंडियन आइडेंटिटी का, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सपोर्टेड बाय द पैसेज? The Mahabharata and the Ramayana were considered sacred texts and had a profound impact on Indian society. Second, Sanskrit was exclusively the language of the royal courts and has no influence on everyday life. देखो ओनली रॉयल कोर्ट की ही लैंग्वेज थी, ये तो गलत हो गया। द धर्मशास्त्र टेक्स्ट वर रिजिड एंड अनचेंज थ्रू आउट द इंडियन हिस्ट्री, ये भी नहीं है कि वो मतलब रिजिड थे, ऐसा नहीं कह सकते हैं। द द्रविडियन इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कल्चर वॉज मिनिमल कंपेयर टू द आर्यन इन्फ्लुएंस। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर पैसेज में यही लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है ना, फॉर दोज वर कंसिडरेबल द्रविडियन इन्फ्लुएंस। तो आर्यन से ज़्यादा द्रविडियन कल्चर को इन्फ्लुएंस मिली, तो ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. Select the appropriate central theme of the passage.
The lasting influence of the Dharma Shastra text on Indian legal system, providing a framework for personal law and social conduct. Second, the enduring impact of cultural forces such as language, literature, or regional religion on Indian identity and collective spirit, shaping its unique character. Third, the gradual decline of Sanskrit as a unifying language in India despite its historical significance. Fourth, the significant role of religion, particularly Hinduism, in shaping the social fabric of इंडियन सोसाइटी एंड इन्फ्लुएंसिंग इट्स कल्चरल नॉर्म्स। देखो, सबसे जो सही लग रहा है ना वो ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है, क्योंकि इसी में ही बता रखा है कि लैंग्वेज, लिटरेचर और रिलीजन की इंडियन आइडेंटिटी का कलेक्टिव स्पिरिट और यूनिक करेक्टर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज। कैसी टोन है? ऑब्जेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव with a subtle undercurrent of admiration of Indian cultural heritage. Yes, option number 1 is the correct answer. ऑब्जेक्टिव भी है, इंफॉर्मेटिव भी है और एडमायरेशन ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज भी बता रही है। क्वेश्चन नंबर 5 तो हम कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी एंटोनिम पूछा है किसका? कॉम्प्लीमेंट का। देखो, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेज और एडमायरेशन। प्रेज और एडमायरेशन। अब उन्होंने पूछा है जो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब एंटोनिम इनमें से किस ऑप्शन में यूज़ हुआ है? पढ़ लेते हैं। द इम्पीरियलिस्ट अकाउंट ऑफ द colonized people was a diatribe filled with the racist impression। देखो, यहाँ पे ये एक diatribe वर्ड यूज़ हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इंसल्ट, क्रिटिसिज्म और abusive remarks। सिर्फ रिमार्क्स। सेकंड क्या है? माई डॉटर ट्राइड टू कैजॉल मी इनटू गिविंग हर फेवरेट चॉकलेट। तो यहाँ पे जो कैजॉल वर्ड यूज़ हुआ है इसका क्या मतलब होता है? टू परसुएड जेंटली। टू परसुएड जेंटली। अगर जो एग्ज़ाम सेटर DSSB अगर चाहता तो वो बस मेन ये जो जिन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो ये भी दे सकता था, बट उन्होंने क्या किया, एक सेंटेंस दे दिया जिनमें ये वर्ड यूज़ हुए हैं। तो हमारे को इन वर्ड्स का ही एक तरह से ये एंटोनिम और सिनोनिम पूछ रहे हैं। एंटोनिम पूछ रहे हैं ना किसका? कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? प्रेज और एडमायरेशन। ऐसे जो इसका एंटोनिम क्या होगा, अभी तक हमने 2 ही वर्ड करे हैं, उसी में ही पता चल गया हमें। पहले हम दोनों ऑप्शन जो ऑप्शन 2 रह गए उनके भी मतलब देख लेते हैं। हिज रिटेलिएशन वॉज टोटली अनकॉल्ड फॉर व्हेन आई वॉजंट इवन एड्रेसिंग हिम। तो यहाँ पे क्या है? रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का क्या मतलब होता है? रिवेंज और एक्शन इन रिस्पॉन्स। रिवेंज और एक्शन इन रिस्पॉन्स। और यहाँ पे चैलेंज्ड माई अथॉरिटी, मतलब मैं आपको एक चैलेंज कर रही हूँ, वो वर्ड नहीं है। अब यहाँ पे एंटोनिम क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट का? दैट इज डायट्राइब। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। फर्स्ट क्या है? देखो, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। तो हमारे को 1 से लिखा है मोर ओवर, मतलब हम किसी चीज़ में कुछ ऐड कर रहे हैं ना, कुछ बात, तो मोर ओवर से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 1 और 2 एलिमिनेट हो गया। 2 से ही स्टार्ट होगा, यहाँ दोनों में 2 है। तो प्लांट बेस्ड डाइट विच एम्फोसिस होल फूड्स derived from plants and minimize or exclude animal products are gaining popularity due to their numerous health benefits। ठीक है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। देन हम जाएंगे 4 या 5 पे। पहले 4 पढ़ते हैं। स्पेसिफिकली प्लांट बेस्ड डाइट्स आर टिपिकली हाई इन फाइबर, विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट।
फिफ्थ क्या लिखा है, इन एडिशन टू देयर हेल्थ बेनिफिट्स प्लांट बेस्ड डाइट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड मोर सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली टू कंपेयर टू डाइट्स दैट रिलाई हाईली ऑन एनिमल प्रोडक्ट्स। तो देखो, 2 के बाद 4 आएगा स्पेसिफिकली कि प्लांट बेस्ड डाइट में वो क्या क्या है। तो 2 के बाद 4, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, थर्ड भी। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 2, 4, 3, 1 एंड 5। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कॉरेंट पैराग्राफ। इसमें भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहले 1 से स्टार्ट हो सकता है, 1 से, 4 से या 2 से। 1 देखो, फॉर इंस्टेंस AI पावर्ड ऑटोमेशन, जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ हुए ना, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में, ज़्यादातर जंबल सेंटेंस में क्या होता है, पहले जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ हो रही है ना उसकी फुल फॉर्म बताएंगे उसके पहले सेंटेंस में। तो यहाँ पे तो AI पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यहाँ बताया नहीं इस, और यहाँ फॉर इंस्टेंस भी लिखा है, तो ये स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं 2 से। 2 में मोर ओवर है, तो हम किसी चीज़ में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो 2 से भी नहीं स्टार्ट होगा। हमारा आंसर पहले ही पता चल गया, हमारा क्या है, 4, 1, 2, 5 एंड 3। एक बार रीड करके देख लेते हैं। 4 क्या है, देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। देखो जैसे अभी मैंने बताया, AI की फुल फॉर्म पहले बताएंगे ये पैसे स्टार्ट करने से पहले, है ना। इज़ पॉइज टू रिवोल्यूशनलाइज द वर्क प्लेस, इम्पैक्टिंग जॉब रोल्स एंड स्किल रिक्वायरमेंट अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। Then, for instance, AI-powered automation has the potential to streamline repetitive tasks and increase efficiency in manufacturing and customer service. Then, moreover, AI is being used to develop new drugs, diagnose disease, and personalize medical treatment. However, AI also creates opportunities for new jobs and industries, particularly in areas like data science, machine learning, and AI development. Then, last is, nevertheless, concern remaining about the potential displacement of jobs and the need to reskill and upskill the workforce to adapt to the changing demands of the AI driven economy. तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। दैट एक्सीडेंट disfigured his face so much that he felt he developed an unhealthy fear of mirrors। तो यहाँ पे fear of mirrors के लिए हमारे को एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। पहले हैं इन ऑप्शंस के मतलब देख लेते हैं। आइसोप्ट्रोफोबिया, ये होता है फियर ऑफ मिरर्स। तो हमारा आंसर पता चल गया हमें, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और भी हम देख लेते हैं। ट्राइपैनोफोबिया, ये किस चीज़ का फियर होता है, फियर ऑफ इंजेक्शंस या निडल, फियर ऑफ इंजेक्शंस, निडल। मोनोफोबिया इज फियर ऑफ बीइंग विदाउट अ मोबाइल फोन, फियर ऑफ बीइंग विदाउट अ मोबाइल फोन। ओपिडियोफोबिया, ये क्या होता है, फियर ऑफ स्नेक्स। ओपिडियोफोबिया इज फियर ऑफ स्नेक्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द CEO's dash leadership style characteristic by bold decision making and a willingness to take risk propelled the company to unprecedented success। मतलब जो CEO का ऐसा वर्ड यूज़ करना है जिसका बोल्ड डिसीजन मेकिंग हो, विलिंगनेस टू टेक रिस्क हो। तो देखो, रेटिसेंट, रेटिसेंट का क्या मतलब होता है, रिजर्व्ड, रिलक्टेंट टू स्पीक, रिजर्व्ड या रिलक्टेंट टू स्पीक। कॉन्सिलिनियरी is aiming to make peace or reduce conflict, aiming to make
peace or reduce conflict. Pedantic, pedantic का मतलब होता है overly concerned with minor rules. Overly concerned with minor rules. और audacious, audacious का मतलब होता है bold, daring, willing to take risk. bold, daring, ये audacious वर्ड तो पता नहीं ना जाने कितनी ही बार यूज़ हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. daring and willing to take risk. ज़्यादातर हर दूसरे पेपर में ये ऑडिशियस वर्ड आपको देखने को मिल ही जाएगा. हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. Select the most appropriate meaning of the given idiom. To paint the town red. Paint the town red का क्या मतलब होता है कि अपनी लाइफ को अच्छी तरह जियो. अच्छी तरह जियो. यही वर्ड अभी तो ऐसा वर्ड देखा था. टू गो आउट एंड सेलिब्रेट इन अ lively and extravagant way, to cause a scandal and controversy, to engage in criminal or destructive behavior, to redecorate a town or city. देखो, टू रीडेकोरेट अ टाउन और सिटी तो ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि यहाँ लिखा है टू पेंट द टाउन रेड तो इसका मतलब आप अपने टाउन को रीडेकोरेट करो. नहीं, ये ईडियम है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा. अभी मैंने आपको बताया इसका मतलब है अपनी लाइफ को अच्छी तरह जियो. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. टू गो आउट एंड सेलिब्रेट इन अ लाइवली एंड एक्स्ट्रावेजेंट वे. Question number 12. Select the incorrectly spelled word in the following sentence. Her prospicence became the reason for the vivispecture done to her because such idiosyncrasies were considered unwomanly, and this incident developed a Laudendicans attitude in her children. एक तो वर्ड भी पता नहीं क्या क्या ये इसमें हमारा इनकरेक्ट है. ये प्रोस्पिकेंस, प्रोस्पिकेंस की स्पेलिंग क्या होती है? PRO, सॉरी प्रोस्पिकेंस नहीं होता, ये पर्सपिकेंस होता है. PERSPICENC, पर्सपिकेंस. और इसका मतलब होता है कीन इनसाइट और अंडरस्टैंडिंग. Question number 13. Select the most appropriate set of articles to fill in the blanks. She decided to write an essay on climate change after reading an article on this topic in newspaper. देखो, एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो न्यूज़पेपर से पहले तो द आ जाएगा. और क्लाइमेट चेंज कैसा टॉपिक है? एक क्लाइमेट चेंज अपने आप में ही एक फुलफिल टॉपिक है, इसीलिए इसके आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. शी डिसाइडेड टू राइट एन एसे ऑन क्लाइमेट चेंज आफ्टर रीडिंग एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक इन द न्यूज़पेपर. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. Select the most appropriate option to fill in the blanks. After hearing about his colleague promotion, Jena felt quite dash as she had been hoping for a similar opportunity. तो जेना ने कैसा फील किया? मतलब उसको जेलस फील हुई क्योंकि वो भी सिमिलर अपॉर्चुनिटी की उसका भी प्रमोशन होगा ऐसा सोच रही थी. तो देखो, इनडिफरेंट क्या मतलब होता है? कुछ डिफरेंट. एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक. एंथुसियास्टिक का क्या मतलब होता है? एनर्जेटिक. कंटेंट, कंटेंट मतलब कुछ नॉलेज हो. और एनवियस, एनवियस का मतलब होता है फीलिंग जेलस ड्यू टू समवन एल्स सक्सेस. फीलिंग जेलस, jealousy due to someone else success. तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. एंटोनिम बताना है ऑफ द वर्ड एरेंट. देखो, एरेंट जो वर्ड है ना,
ए आर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये एक नेगेटिव सेंस में यूज़ होने वाला वर्ड है। और इसका क्या मतलब होता है? यूज टू एम्फसाइज हाउ बैड समथिंग इज, हाउ बैड समथिंग इज। तो हमारे को यहाँ पे एक ऐसा वर्ड ढूंढना है इन सब में से जिसका मतलब हो कि अपने से ज़्यादा दूसरों को सोचे, दूसरा का बेटर करने के लिए सोचे, अपने बारे में कम सोचे, है ना। ही कॉस्ट, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ही कॉस्ट अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस ड्यू टू हिज डेविल मे केयर एटीट्यूड। देखो ये भी जो इससे पहले वाला एंटोनिम वाला क्वेश्चन था उसकी तरह ही है। सेंटेंस में से आपको वर्ड्स ढूंढने हैं। देखो डेविल में केयर का क्या मतलब होता है? केयरलेस, साफ पता चल रहा है। तो केयरलेस। आई वॉज सरप्राइज बाय द ह्यूमिलिटी ऑफ द मेयर वेन आई मेट हिम। देखो यहाँ पे है हाउ बैड समथिंग इज़, और ह्यूमिलिटी का मतलब है कि अ, वो अपने बारे में ना सोच के दूसरे के बारे में सोचता है। द क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल, कि मैं सबसे बेटर हूँ, मेरे से बेटर कोई नहीं है, ह्यूमिलिटी का मतलब। तो समथिंग समथिंग एंटोनिम सेट हो रहा है पूरा। द क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग दैट you are better than other person। ऑप्शन नंबर 3 है वी वेलकम आर न्यू कुलीग इन अ ग्रैंड मैनर। तो यहाँ पे ग्रैंड का मतलब एक्स्ट्रावेजेंट मैनर। और द इनकम्प्लीट होमवर्क इन्फ्यूरिएटेड माई क्लास टीचर। इनकम्प्लीट होमवर्क यहाँ पे हम वर्ड अंडरलाइन कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, select the most appropriate option to fill in the blanks. The dash novel kept me up all night. Intriguing, rancorous, weary या confounding। तो देखो intriguing का क्या मतलब होता है? क्यूरियोसिटी और इंटरेस्टेड, क्यूरियोसिटी और इंटरेस्टेड। rancorous, full of bitterness, full of bitterness। weary, tired or boring, tired or boring। confounding, confusing। तो हमारा आंसर क्या हो गया? कैसी नॉवल थी जिसने उसको पूरी रात इंटरेस्टेड होगी तभी तो पूरी रात नॉवल पढ़ने में बिता दी ना। तो आंसर क्या हो गया? इंट्रिग्विंग। द इंट्रिग्विंग नॉवल केप्ट मी अप ऑल नाइट। क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज रिसर्चिंग डैश इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाया था हमने पहले क्वेश्चन में, बट यहाँ पे इफ़ेक्ट्स बताया ना, कैसे इफ़ेक्ट्स हैं? ही इज सर्चिंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट टू बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द हाउस। द ओल्ड हाउस stood abandoned, its windows boarded up and painting peeling. Weeds stalked the overgrown garden, and the air hung heavy with the scent of decay. Inside, cobwebs draped the dusty furniture, and the floorboards creaked underfoot. तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऑर्नेट, प्रिस्टाइन, रेनोवेटेड या डिलापिडेटेड। देखो ऑर्नेट का क्या मतलब होता है? डेकोरेटिव, इलेबोरेट। डेकोरेटिव तो नहीं है यहाँ पे, तो उसकी जर्जर हालत की डिस्क्राइब किया है ना। ऑर्नेट का मतलब होता है डेकोरेटिव। प्रिस्टाइन, परफेक्टली क्लीन, परफेक्टली क्लीन और न्यू। रेनोवेट, रिसेंटली रिपेयर्ड,
and dilapidated is run down or falling apart. Run down or falling apart. तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? डिलापेटेड. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड word in the given sentence. I need to be sane enough to handle this catastrophe. तो कैटास्ट्रॉफी का की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? CATASTROPHE. CATASTROPHE. Yes. Option number 3 is the correct answer. Question number 20. Last question of this video. Select the most appropriate meaning of the given idiom. क्या है? To take the wind out of someone's sails. तो सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब ही बता देती हूँ. टू टेक द विंड आउट ऑफ समवंस सेल्स का क्या मतलब होता है? सडनली रिड्यूस समवंस कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म और एडवांटेज. मतलब आपको किसी को एकदम से नीचा दिखा देना है, उसका कॉन्फिडेंस लो कर देना, उसका एंथुसियाज्म लो कर देना. ठीक है. टू फिजिकली हार्म और इंजर समवन. फिजिकली नहीं, यहाँ पे तो आपको मतलब इनटेंचेबल चीज़ को, कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म, ये इंटेंचेबल होता है, इसको हम टच नहीं कर सकते. तो फिजिकली तो बात ही नहीं हो रही है. टू स्टील समवंस बिलोंगिंग और आइडियाज़ नहीं. टू ओवर स्मार्ट और ओवर मैन्योर समवंस इन अ कंपटीशन नहीं. टू डिस्करेज और डिफ्लीट समवंस एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस. यस. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.